شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی پیاری بہنوں کو ویلکم، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو سکے اور اللہ کی کتاب میں دیے ہوئے کچھ خاص احکامات جو کہ جیسی آیات یہاں پر آپ کے اسکرین پر بھی چل رہی ہے الحمدللہ، اور یہ بہت ہی زیادہ ہم سب کو پیاری آیات ہوتی ہیں، جیسے کہ انہی کے بعد جو آیات ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیات، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، اس میں روزے کے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر روزہ فرض کیا ہے اور روزے کے کیا احکامات ہیں، بہت بہت ساری اس کی الحمدللہ فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم لوگ اس میں بات کریں وہ ہم سب کے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اچھا جی، زوم کے اوپر جو آپ لوگوں کو لنک ملی ہے، زوم کی لنک، وہ فل ہو جانے کے بعد دیکھیں آپ لوگوں کو میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر بھی لگا ہوا ہے، لائیو اسٹریم ملی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر سے اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو وہ آپ لوگ بھیجیں یوٹیوب کی لائیو اسٹریم، اس کے اوپر سے جتنے لوگ بھی انشاءاللہ جوائن ہونا چاہیں گے تو اس کے اوپر سے جوائن ہو سکیں گے۔ اللہ آسانی فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہ چیز جو ہم لوگ پہنچانا چاہ رہے تھے تو اس چیز کو آسان کریں کہ لنک جہاں جہاں آپ لوگ نے بھیجی تھی وہاں پر یہ یوٹیوب کی اسٹریم اب بھیج دیں، وہ لائیو اسٹریم جو چل رہی ہے یوٹیوب کی لنک آپ لوگ دیکھیں، میرے اسٹیٹس پر بھی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ کسی گروپ کے تھرو جوائن ہو رہے تھے میرے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ نے بولا ہوا ہے کہ شیئر کرا جائے، ادروائز آپ میرے اسٹیٹس پر جا کر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر سے انشاءاللہ لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں اللہ خوب آسانی فرمائے، شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی میری پیاری بہنیں ہیں اور الحمدللہ کوئی یہاں استاد یا اس طرح کی چیز کو لے کر ہم لوگ نہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ میری زبان سے آپ لوگوں تک پہنچے گا، اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اللہ آسانی کرے۔ چلے جیسا کہ یہ رمضان الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں آنے کو ہے، کچھ ہی دنوں بس اب رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد الحمدللہ ہم سب اس بہترین فضیلت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو چلیں رمضان مبارک کی فضیلتوں کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس میرے پاس ہم نے اپنے نکال کے رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس کی فضیلت بیان کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہو، بہترین معلومات ہو، اس کی مثال ہم ہمیشہ اسی طرح سے دیتے ہیں کہ جب اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی بڑا ڈاکٹر یا کوئی اور پوسٹ کا انسان رہتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کون ہے، کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم کبھی بھی اس کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ عام اپنی زندگی میں گھر میں بھی کوئی پریشانی تکلیف آئے، جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس چیز کو ہم لوگ اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم وہ اس طرف رخ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گی کہ اوکے، تھوڑی سی ڈسٹربینس چل رہی ہے، لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں واٹس ایپ پر کہ ان کو فل ہو گئے ہیں، جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، دیکھیں جلدی سے یہ دوسروں لوگ کو شیئر کر دیں، یہ جو اس کی لنک آئی ہوئی ہے آپ سبھی کے پاس میرے اسٹیٹس پر سے بھی لے سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو اس کی فضیلت میں سے ہم لوگ دیکھیں گے
जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने मुबारक के रोज़े दीन इस्लाम के रुकन में से चौथा रुकन करार दिया है। रुकन किसे कहते हैं? अरकान, यानी कि जो पिलर्स होते हैं, बेस होता है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ हिली भी हो, हमारी बेस में से एक चीज़ हिली भी हो, तो हमारी इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बनी हुई होगी, तो वो बिल्डिंग बिल्कुल भी मज़बूत नहीं होगी। तो हमारी इबादतें, हमारी अल्लाह से कनेक्शन, हमारा दिल का लगाव, ये सारा जो है वो खोखला और खाली होगा, नाक़ाबिल कबूल भी हो सकता है कि अगर हमारे पिलर्स ही मज़बूत ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमज़ान के महीने के जो ये रोज़े हैं, इसको अपने ख़ास रखते हुए कि ये पिलर है, एक रुकन है, चौथा रुकन है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमें ध्यान रखना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस माह मुबारक के रोज़े रखना दीन इस्लाम का चौथा रुकन करार दिया है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद कुरान में भी फरमाया हुआ है। सूरह अल-बक़रा 185, माह रमज़ान का वो महीना है ये, जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत का बाअस है, और इसमें राह हिदायत की वाज़ेह निशानियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फ़ुरक़ान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने में कुरान को नाज़िल फ़रमाया। ये हमारा दूसरी फ़ज़ीलत है रमज़ान के महीने की फ़ज़ीलत में से, कि इसी महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाज़िल फ़रमाया। सूरतुल क़द्र में यक़ीनन हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फ़रमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र कब होती है? हमारे रमज़ान के महीने में ही होती है। तो असल में तो ये फ़ज़ीलतें कुरान की फ़ज़ीलतें हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस जिस उम्मत के ऊपर नाज़िल हुआ, उस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत करार दे दिया। जिस नबी के ऊपर नाज़िल हुआ, उस नबी मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे अफ़ज़ल नबी करार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और इसी तरह अ, हमारे रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए रमज़ान की भी फ़ज़ीलत है, और जिस रात में नाज़िल हुआ, उस रात की भी फ़ज़ीलत है। सुब्हान अल्लाह। अ, फिर फिर इसी में हम सभी को मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लैलतुल क़द्र की भी जो एक रात का इबादत जो बताई है, वो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल और बेहतर बताई है। हज़ार महीनों के बराबर भी नहीं, उससे भी अफ़ज़ल और बेहतर बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी चीज़ हम सभी को मालूम है। लैलतुल क़द्र में ही सूरतुल क़द्र में ही ये चीज़ जो है वो नाज़िल हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब तक पहुँचाई है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ओके, फिर हमारा 4th पॉइंट में लगभग इसकी फ़ज़ीलतें आप लोग पॉइंट की तरह अपने पास लिखते जाएँ, ताकि जैसा कि हमने शुरू में बता दिया कि जिस चीज़ की अहमियत, फ़ज़ीलत, उसकी वैल्यू हम सभी को मालूम हो, तो हम लोग इसका जो है वो ये करते हैं कि उसको अहमियत देते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं। चलें। इसके बाद हम सभी को ये रिमाइंडर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि आप सब में से किसी को कुछ मालूम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे, और रमज़ान की ये सारी, लेकिन किसी भी चीज़ की पॉलिश हो जाना, उसका रिमाइंडर करना या उसकी याद दहानी करना, उस चीज़ को अच्छे से पॉलिश करने में हमको मदद करती है। तो 4th पॉइंट में हम लोगों ने देखेंगे कि इस मुबारक महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शैतान को ज़ंजीर में जकड़ कर बाँध दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास वो बाबरकत महीना आ रहा है, जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। उनमें उसमें आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। आसमान के दरवाज़े, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश शैतानों को ज़ंजीरों में बाँध दिया जाता है। अल्लाह के लिए इस महीने अ, में एक रात है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो भी इस रात की खैर से महरूम हो गया, वो महरूम ही है। सुनन निसाई की हदीस है 2106।
तो बहुत बड़ी महरूमी इसके बारे में हम सभी को मालूम है कि लैलतुल क़द्र की अगर महरूमी या रमज़ान मिले और अपने आप की मग़फ़िरत इंसान ना करा पाए, इसमें भी बहुत बड़ा जो है वो खसारा वाला शख्स कहलाता है। चलिए इन पॉइंट्स को देख लें, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। हमारा 5th पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी लैलतुल क़द्र का ईमान और अजर व सवाब की नियत के साथ क़ियाम किया, ठीक, लैलतुल क़द्र का जिसने भी अ, ईमान के साथ क्या मतलब है कि हम सब तो ईमान वाले ही यानी मुसलमान ही तो रमज़ान के रोज़े रख रहे होते हैं। अब ये ईमान के साथ फिर से क्यों आया कि जिसने अगर लैलतुल क़द्र का क़ियाम किया ईमान के साथ और अजर और सवाब की नियत के साथ, तो उसको फिर क्या अजर है? उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1910 और सही मुस्लिम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है 760 पर। तो लैलतुल क़द्र अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह हम सब पर अपने रहम करने के तरीक़े, ये अल्लाह का रहम है, फ़ज़ल है हम सब पर कि वो हम गुनाहगार बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए ये सारे हम तो कहते हैं ये सारे ऑफ़र्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़े-थोड़े दिनों में मुहर्रम महीने आते हैं, उसमें देखिए अजर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी हमको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर रमज़ान के महीने में भी हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस-किस तरह से हम इसमें अपना अपने इतने सारे गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अ, हर रोज़ ही आसमान पर आए हुए होते हैं और बाकी अ, रमज़ान में तो ख़ास पुकार लगाई जाती है, इंशाअल्लाह आगे इन हदीसों को भी देखेंगे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान मुबारक में 6 पॉइंट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान मुबारक में ईमान और अजर व सवाब की नियत के साथ रोज़ा रखना, जिसने क़ियाम किया, ऊपर वाली हदीस में क्या था कि जिसने ईमान और अजर व सवाब की नियत से क़ियाम किया क़ियामुल लैल में, तो अ, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक में जिसने ईमान और अजर व सवाब की नियत के साथ रोज़ा रखा और क़ियाम किया, तो उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। तो दूसरी हदीस में हमको मिलता है कि जिसने रोज़ा रखा, एक और हदीस में मिलता है कि जिसने क़ियाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम सभी के लिए हम सभी के लिए आसानी और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के दरवाज़े का खुल जाना। फिर बाकी अब देखिए कि हम लोग इन सारी चीज़ों में किस तरह से अपने आप को दाख़िल करते हैं, इसका भी मुहासबा हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करने की कि एक रिवाज की तरह तो नहीं इसमें जा रहे हैं। क्यों इन हदीसों में आया कि ईमान के साथ अजर, एक तो अजर व सवाब की नियत, ये सारी नियतें हमें अपनी नियतों को चेक करना चाहिए कि हम किस नियत से इसमें दाख़िल हो रहे हैं। तो अ कोई दिखावा, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कि हमें पिछले वो इतना करती हैं तो हम इतना करेंगे, हमारे पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हमको भी ये दिखाना है, हमको भी इसी तरह से पकाना है वग़ैरह। ईमान के साथ ईमान क्या कि है हम अल्लाह के लिए ये देखिए रोज़ा एक ऐसा मख़फ़ी इबादत है। नमाज़ हम पढ़ते हैं तो वो भी आप अगर कोई भी कमरे में आ जाए तो उसको दिख जाता है कि भई आप नमाज़ पढ़ रही हैं। इसी तरह जब हम अ, हज पे जाते हैं, उसमें भी लोगों को पता चलता है हज पे गई हैं, ज़कात निकालते हैं, तो चलिए किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन जिसको हम ज़कात दे रहे होते हैं, उसको पता चल जाता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि वो आपके और आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बेहतरीन एक ये रहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और किसी को ये चीज़ जो है वो मालूम नहीं होती कि बंदा रोज़े से है। चाहे तो वो जाके किचन में खा ले, किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये उसका मामला जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके इनके साथ चल रहा होता है, उनके बंदों के साथ कि बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुबहान तो उसके लिए अजर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजर बता दिया। रोज़े के लिए इरशाद फरमाया कि मैं अपने अपने पास से दूँगा, सुभान अल्लाह। चलिए ये हदीस भी आगे आएगी, हमारा 6 पॉइंट जो हम लोग देख रहे थे। तो इसी के अंदर और हदीस है कि जिसने भी रमज़ान मुबारक में ईमान और अजर व सवाब की नियत से रोज़े रखे,
उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी की ये भी एक हदीस है। फिर जिसने भी रमज़ान मुबारक का ईमान और अजर व सवाब की नियत के साथ क़ियाम किया, उसके सारे, तो ये जैसा कि हम लोगों ने देख ली कि दोनों क़ियाम और रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें इसके फ़ज़ल में आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसमें और क्या चीज़ें चाहिए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान कर दे, हमको मग़फ़िरत मिल जाए, अल्लाह हमारे लिए राज़ी हो जाए। तो इस महीने से भी गुज़र जाना और फिर इंसान अपने आप को माफ़ ना करवा पाए, तो ये बहुत बड़ी जो है वो उसके लिए एक ख़सारा है, महरूमियत है। चलें, आगे देख लेंगे फ़ज़ीलत हम लोग। रमज़ान मुबारक की हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देते हैं। तो ये सुभान अल्लाह, कोई एक ख़ास लैलतुल क़द्र तो एक ख़ास रात है, वो भी हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत से, यहाँ देखें हदीस में क्या बयान हो रहा है कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इफ्तारी के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ आज़ाद होते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोगों को आज़ाद फरमा देते हैं। इसे इमाम अहमद ने मसनद अहमद में रिवायत फरमाया है 256 पर। तो लेकिन हमारी तरफ क्या रिवाज रहता है, इंसान आम तौर पर अफ्तारी के वक़्त औरतें बेचारी किचन में मसरूफ़ रहती हैं, क्यों? क्योंकि उनका एक बच्चा ये खाता है, दूसरा बेटा ये खाता है, बेटी को तो ये नहीं पसंद है, शौहर ने इस चीज़ की फ़रमाइश की है, सास इस तरह का लेती हैं और ये है, वो है। तो वो बेचारी दुआओं की बजाय इसमें अपने क्योंकि ये देखें आप कितना बेहतरीन वक़्त है कि हर इफ्तारी के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोगों की गर्दन आज़ाद कर देते हैं। अगर हम पूरे 30 रोज़े रखें और उसमें उसमें हम रोज़ ही दुआएँ माँगे, एक हिसाब बना लें कि सब बैठ कर के इतनी-इतनी देर हम अफ़्तारी से पहले, कितना बेहतरीन वो वक़्त होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने मोहब्बत से अपने बंदे को देख रहे होते हैं कि खाना, पानी सभी कुछ उसके सामने आगे रखा हुआ है, लेकिन वो अल्लाह के लिए इन चीज़ों को छोड़कर और अल्लाह के आगे अपनी भूख में, अपनी प्यास में हाथ फैलाए बैठा होता है और माँग रहा होता है। तो इस चीज़ का भी हम सब एहतमाम करेंगे, क्योंकि हमने ये पॉइंट देखा कि अफ़्तारी के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोगों को आज़ाद करते हैं। तो पूरे महीने में कितनी बार हमको ये चांस मिलेगा कि हम दुआ करें और अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने सारे करीबी सभी के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ फरमा दे। और जैसा कि ये अफ़्तारी का वक़्त है, तो रमज़ान को लोगों ने इसका खाने-पीने का महीना बना के रखा हुआ है। कहीं ये भी सुना था कि फ़ास्ट का नहीं, फ़ीस्ट का महीना इसको बना के रख लिया गया है, कि बस पार्टीज़ होनी है और बेहतरीन-बेहतरीन जो पूरे साल नहीं खाते, वो रमज़ान में खाने की ख़्वाहिश दिखाते हैं कि ये खाना है, वो खाना है और आप क्या ये खाने, ये तले हुए खाने और ये इस तरह के रोज़ के रोज़ सुभान अल्लाह, कितनी जगह देखा है कि बस अफ़्तारी ही करते हैं, खाना तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है। अफ़्तारी में इतने सारे आइटम बन जाते हैं कि वो फिर खाने की ख़्वाहिश ही नहीं होती और फिर इस तरह का तला और पेट को अजीब तरह से भर देने वाला आइटम, ये खा लेने के बाद हम इस कुरान के महीने को, इस इबादत के महीने को बस खाने का महीना बनाकर रख डालते हैं। तो इस चीज़ का हर बार ही अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हम सभी को एक ये मिल गई है कि हमें किस तरह से इसको ये करना है, किस तरह से लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा लोग अब नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पड़ोस से अगर कोई आपको 2 प्लेट 2 आइटम ही भेज दें, तो उसका शुक्र अदा करें और उसको हमारी तरफ कॉम्पिटिशन हो रहा होता है कि नहीं उन्हीं ने तो 5 चीज़ें बना के भेजी थी, अब हम भेजेंगे ही नहीं जब तक हम 6 ना बना लें। उनकी जैसी पूरी प्लेट आप करने दें, जो जिस तरह से जितनी जिसकी इस्तात है, हो सकता है कि वो ज़्यादा ताकतवर हो, जिनके पास ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा बरकत हो या कुछ भी वजह हो सकती है कि उनके पास और कोई बना के चला गया हो, किसी से कोई खाने-पीने का कॉम्पिटिशन अगर करना है, तो आप ये देखें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के बारे में कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन क्या, उनसे आप अपने आप को बूस्ट करने के लिहाज़ से ये चीज़ आप कर सकती हैं कि हमारा कोई ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में मशगूल है। आप भी कहें मैं भी एतिकाफ़ पे जाऊँगी, मैं भी इत्ते कुरान पढ़ूँगी, मैं भी इस तरह से रातों में जाग के अल्लाह की इबादत करूँगी। इस चीज़ में आप दूसरे को देख के कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ उन्होंने ऐसा कपड़ा पहन लिया था, उन्होंने ये पका लिया, उन्होंने ये खा लिया, इन सारी मुसीबतों से हम सबको बचना है और
अपने ये कीमती पल कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जहन्नम से गर्दन आज़ाद हो जाना, ये कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अ, अगर कोई जहन्नम में फँस गया, तो बहुत-बहुत बड़ा खसारा है। और हम सबके ईमान ऐसे हैं कि अच्छा जन्नत है, ओके ठीक है, अच्छा जहन्नम है। अगर दुनिया में बता दिया जाए कि कहीं कोई बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई या बहुत बड़ा कोई खूबसूरत हॉल सजा हुआ है, उसमें आप सबको फ्री इतना सा ये करेंगे और इसके बाद एंट्री। हर कोई कोशिश करेगा, चाहे उसमें कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए कि हाँ, मुझे तो ये करना है और उसमें फ्री एंटर होना है, वहाँ पे मुझे जाना है। लेकिन ये क्या हमारे ईमानों की कमी ही नहीं है, कमज़ोरी ही नहीं है कि पक्का मज़बूत ईमान ही नहीं है कि हम अगर इस तरह से इबादतें करेंगे, इस तरह से तो इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के लिए तैयार कर रखी है। और देखिए आप छोटी-छोटी चीज़ों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अभी ये सिर्फ़ बैठकर उस वक़्त मग़फ़िरत की दुआ करनी है रोज़ा के इफ्तार से पहले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सही हदीसों में सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ लोगों की गर्दन आज़ाद करते हैं। तो अल्लाह से खूब दुआ है कि या रब इस महीने रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों को इसमें शामिल फ़रमा ले, जिनकी गर्दनें आज़ाद की जाएँगी। आमीन या रब। फिर हमारा 8th पॉइंट जब कबीरा गुनाहों से बचा जाएगा, इज्तिनाब किया जाए, तो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना पिछले सब गुनाहों का कुफ़ारा है। जिस तरह से ये हदीस है ना कि 5 नमाज़ें और जुमे से लेकर एक जुमे से दूसरे जुमे तक, यानी एक नमाज़ से एक फ़र्ज़ नमाज़ से दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ के बीच का जो टाइम है वो, एक जुमे से लेके दूसरे जुमा आने तक का बीच का जो टाइम है वो, एक रमज़ान से लेके दूसरे रमज़ान तक का आने के बीच के जितने भी गुनाह हैं, ये आपने अगर अटेंड किए यानी एक नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आपने दूसरी नमाज़ पढ़ ली, तो दूसरी इनके बीच में जितने आपसे गुनाह हो गए थे, ये इसका कफ़ारा बन जाते हैं, सुब्हान अल्लाह। शर्त क्या है? कि कबीरा गुनाहों से आप बचने वाले हों। आपने कबीरा गुनाहों से खुद तौबा किए हुए हों। कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? वो गुनाह जिसमें अ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वईद सुनाई हो, कुरान में कोई बताया हो कि इसकी ये सज़ा है या अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे नापसंद करते, इस तरह की चीज़ें अगर बयान हुई, तो उन सभी को कबीरा गुनाह कहते हैं, जिस चीज़ों के ऊपर हुक्म आए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कबीरा गुनाहों से तौबा करने वाला बनाए, क्योंकि आजकल कुछ कबीरा गुनाह ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में आम हो गए हैं। लोग अगर उनको नहीं कर रहे हैं, तो उनको ना करने वालों को बेवकूफ़ बताया जा रहा है। आम तौर पर इंडिया में बिजली इलेक्ट्रिसिटी के लिए आराम से पावर कट करके या कोई ऐसा उसमें इंतज़ाम कर के और बिल कम पे किया जाए या नहीं दिया जाए, या एसी अगर चला रहे हैं तो वो किसी और तरह से चलाया जाए। ये सारी चीज़ें जो नहीं कर रहा है उसको कहते हैं बेवकूफ़ है, पूरा की पूरा पैसा भर रही है अपना। और अ, इंटरेस्ट का पैसा नहीं लेना, उसको भी लोग इस तरह से, या चलें इसको भी आजकल लोगों ने एक बड़ी उसमें ले लिया है कि ये धोखाधड़ी है, चोरी है। लेकिन आम तौर पर किसी का दिल दुखा लेना, पीठ पीछे चुगली कर लेना, चुगली आसान, औरतों के लिए तो बहुत, ज़बान सभी की, हम सबको बात करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जबकि मोमिन के लिए क्या बयान किया गया है कि बात करे तो अच्छी बात करे, वरना चुप रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक दे कि ये कम से कम ये जो महीना अब कुछ ही दिनों में हमारा आने वाला है, अल्लाह ताला इसमें हम सबको बेहतरीन तरह से इसको गुज़ारने वाला बनाए। और फिर ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। जब हम 1 महीना अल्लाह के साथ सच्चे, पक्के और इस तरह से करके गुज़ारते हैं, तो बेशक आपके रोज़े कबूल हुए, आपकी इबादतें कबूल हुई। इसका असर ये होता है कि बाद में भी हम ऐसे नहीं होते हैं कि बस अब किसी कैद से छूट गए, अब तो वही पुरानी ज़िंदगी में जाना है। ऐसा नहीं करना। आप देखें कि कुरान भी जो आयत शेयर की हुई है इसके ऊपर, उसमें देखें आप रोज़ों का मकसद बयान हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर सियाम रोज़े लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुम पिछले लोगों पर भी थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले हो जाओ। ताकि हम भूखे रह सकें, ताकि हम डाइटिंग कर सकें, ताकि हम कोई कोई आगे नहीं बयान किया गया। क्या बयान किया गया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा वाले हो जाओ। तो ये 1 महीना इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद अगर आप देखें कोई और भी इस तरह का कोई कोर्स हो, छोटा कोर्स हो कि भई उसमें बताया जाए कि आपको ये गुनाह नहीं करना, ये नहीं करना, ये रमज़ान में तो कुछ हलाल चीज़ें भी जो है वो हमको रुकने के लिए कह दी जाती हैं कि आप रोज़े से हैं तो आप अ लड़ाई नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में बुरी बातें नहीं कर सकते, और बीवी-शौहर इनके रिश्ते के ऊपर भी जबकि वो एक सबसे पाक हलाल रिश्ता है।
तो कितनी सारी पाबंदियाँ आ जाती हैं। रोज़ेदार को अगर कोई कुछ गलत बात कहे, उससे झगड़े, तो उसको क्या हुक्म है कि वो पलट के क्या कह दे, मैं रोज़े से हूँ। बस, ना वो लड़े, ना झगड़े। लेकिन आजकल बस हम खाना-पीना छोड़ देते हैं, बाकी अपना रूटीन उसी तरह से चला रहे होते हैं। तो सिर्फ़ खाना छोड़ देना, भूख-प्यास बर्दाश्त करना, तो उस अल्लाह ताला के पास यही है कि उसने सिर्फ़ भूख और प्यास ही बर्दाश्त की है। उसने मेरे लिए कोई रोज़ा नहीं रखा, उसका उसने उसके हिस्से बस भूख और प्यास ही आई है, यानी कि रोज़े का कोई अजर नहीं मिला उसे। तो अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि जब हम रोज़ा रखें, तो सिर्फ़ रोज़ा खाना-पानी छोड़ देना नहीं है, ब सभी गुनाहों से बचना है। तो ये बेहतरीन ट्रेनिंग है। जब 1 महीना पूरे इतने दिन तक हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो साल के जो बचे ये महीने हैं, उसमें हम क्यों अपने आप को इस तरह से नहीं रख सकते? तो रख सकते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग है। इसका मकसद ही यही है कि हम तक़वे वाले हो जाएँ, तक़वा अल्लाह का डर, अल्लाह से डर वाले बन जाएँ। तो बस 1 महीना डरना है, बाकी और नहीं, नहीं हर ही दिन इसको इसी तरह से लेकर चलना है। चलें, हम लोगों ने 8 पॉइंट देख लिए। 9th है, जो शख़्स रमज़ान मुबारक की रात को इमाम के साथ क़ियाम मुकम्मल करे, तो उसे सारी रात के क़ियाम का सवाब मिलता है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़्यादातर ही सब तरफ हम सब जमात के साथ तरावी पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें ख़ास यहाँ पर वक़्त है कि नाम बयान हुआ है। हदीस देख लेते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी इमाम के साथ क़ियाम किया हत्ता कि इमाम चला जाए, यानी पूरी नमाज़ शुरू से लेके आखिर तक तरावी तक पूरा जितना भी नमाज़ इमाम ने पढ़ाई, उसने पूरा उतना देर रुक कर वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, तो उसके लिए पूरी रात का क़ियाम लिखा जाएगा। और क्या चाहिए? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी आसानियाँ की हैं। क्या हमारे इस तरह के रूटीन हो सकते हैं कि सुबह स्कूल भी है, सुबह ऑफ़िस भी है, बिज़नेस भी है, दुकान भी खोलनी है, हमें हमारे घर में वालिदैन हैं, उनकी खिदमत क्योंकि हर एक के ऊपर तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बड़े-बूढ़े जो हैं, बीमार जो हैं, वो तो रोज़े से नहीं होते हैं। तो उनके लिए तैयारियाँ करना है, लेकिन जो घर की औरतें हैं उनके छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना-पिलाना है। कोई घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको खिलाना-पिलाना, यानी कि छुट्टी नहीं है कि भई अब रात भर क़ियाम करा है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है इंसान का बदन है, थक जाता है, सुकून माँगता है, नींद माँगता है। तो हम कैसे करें कि दिन में हमारी ये भी काम है, रात देखें आप जमात के साथ सुबहान अल्लाह क़याम कर लेने वाले के लिए। और एक मुसीबत अब अभी हम लोग की तरफ ये भी है कि कुरान ख़त्म, बस कुरान ख़त्म का तो कहीं किसी हदीस में भी ज़िक्र नहीं आया कि तरावी में कुरान ख़त्म कर लेना है, उसके बाद हम अपने बिज़नेस में जाएँ, तरावियाँ छोड़ दें। तो अल्लाह करे कि हम सब इतने ज़्यादा बिज़नेस चलाएँ, लेकिन सारे मुश्किल कामों को थोड़ा-सा छोड़ दें, दूर रखें, जितना चीज़ों से बच सके। भई 1 महीना बस हम सब्र करेंगे। भई थोड़ा दुकान में किसी और को बैठा देते हैं या थोड़ा-सा लेट कर देंगे या कुछ भी, तो जो खसारा होगा अल्लाह के लिए अगर कोई चीज़ हम छोड़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बढ़-चढ़ कर हमें अता करते हैं। तो कोई खसारा वाला ये चीज़ नहीं होगी, बस थोड़ी ही देर की नमाज़ें ये होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ें और फिर अपने वापस जगह पर जा सकते हैं और उसका अजर क्या बयान हुआ? पूरी रात क़याम का। पूरी रात क़याम करना हर दिन के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे भी हम सब के लिए पॉसिबल कर दिया। ये भी सुनन अबू दाऊद की हदीस है 1370। 10th पॉइंट, माह मुबारक इस रमज़ान मुबारक में उम्रा करना हज के बराबर है, सुभान अल्लाह। तो जो जिनको इस्तिताअत अल्लाह ताला दे कि रमज़ान में उम्रा कर सकें, यहाँ बहुत रश और बहुत ज़्यादा कोशिशें होती हैं कि रमज़ान में उम्रा मिल जाए। उसकी हदीस क्या है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत को फरमाया, तुझे हमारे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका? यानी कि वो लोग हज करने जा रहे थे, तो वो औरत नहीं जा पा रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों नहीं आ पा रही हो? तो उस औरत ने बताया कि हमारे पास 2 ही ऊँट थे। एक पर उसके शौहर ने हज किया है, यानी एक हमारे शौहर लेके चले गए थे और दूसरा हमारे लिए छोड़ गए थे, जिससे हम अपने पानी वग़ैरह लाने का काम करते हैं, यानी उनके काम का वो ऊँट था। जिससे वो घर के काम-वाम चलाया करती थी, तो वो उसके वो दोनों ही लेके अगर 2 सब चले जाते तो मसला हो जाता। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब रमज़ान आए तो तुम उम्रा कर लेना फिर, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह! नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज, एक तो हज का अजर, ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का बयान है। ये सही मुस्लिम की हदीस है 1256 में आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا فرض حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ادا تو جب ہی ہوگا جب ہم اپنا حج کے موسم میں حج اپنا ادا کریں گے فرض۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو کتنے بڑے-بڑے ثواب بتائے جا رہے ہیں عمل کے، تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ پوائنٹس جو بتائے جا رہے ہیں وہ لکھ لیں، انشاءاللہ گروپس میں بھی بعد میں شیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایک ریمائنڈر رہے۔ اوکے چلیں، بہترین ایک پوائنٹ ہے کہ ایک رمضان پا لینا کسی شہید سے بھی بڑھ کر عمل ہے، شہادت سے بھی بڑا عمل ہے۔ چلیے اس کی حدیث بڑھی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو شخص تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ بہت محنتی تھا، یعنی کہ محنت کرتا رہتا تھا دین کے اوپر، جہاد پہ جا رہا ہے اور ادھر جا رہا ادھر جا رہا، وہ جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو شخص تھا وہ اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا اور پھر اس کے بعد وہ مرا، یعنی کہ جو 2 آدمی تھے اس میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا تھا جنگ میں اور دوسرا 1 سال اور زندہ رہا اور اگلے سال پھر اس کی موت ہوئی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے جو جنت کے اندر سے ایک شخص یعنی کہ وہ دونوں نظر آئے۔ ایک شخص نکلا جنت سے اور اس شخص کو اندر لے کر جانے لگا۔ تو بہرحال بڑی حدیث ہے، اس میں سے بات یہ ہوئی کہ جو شہید ہوا تھا وہ اور لیٹ جنت میں داخل ہوا، جبکہ جنت میں درجات اور جنت میں جلدی اس جو شخص گیا، وہ جو بعد میں جس کا عام طور سے اس کو موت آئی تھی، وہ گیا۔ تو اس نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا کیسے ہوا، شہید تو کتنا بڑے درجے کا اور یہ شہید ہوتا ہے وغیرہ اس طرح کی۔ اس نے کہا کہ اس کا تو زیادہ جلدی، وہ ہم لوگ تو ایسا سوچے ہوئے تھے لیکن یہ اس طرح کا خواب میرے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا جو 1 سال اور زندہ رہا اس کو رمضان کا مہینہ ملا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، اس کو رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے اور نماز بھی پڑھتا تھا اور سجدے کے لیے، یعنی کہ یہ سارے کام وہ نماز روزہ اس نے کیا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھ رہی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پھر اس شہید سے بھی زیادہ درجہ لے کے جانے والا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے کسی شہید کا سنا کہ وہ شہید ہوا ہے تو شہادت کی موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو بھی شہادت کی موت ملے، لیکن اس مہینے کی فضیلت میں یہ بہترین فضیلت ہے کہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں رمضان میں بہترین طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کر لے جائیں، کچھ ہی دن ہیں، سبحان اللہ، یہ بہت دیکھتے-دیکھتے یوں آتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں ارے رمضان شروع ہو گیا اور اچھا یہ کرنا وہ کرنا، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، آج تو ابھی قرآن شروع کیا تھا، یہ دیکھتے-دیکھتے اچھا 15 روزے ہو گئے، پھر تھوڑے دنوں میں پتہ چلتا ہے آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہفتے تو جیسے ڈیز بالکل ایسا لگتا ہے ایک دن، مہینے ویک ہفتے لگنے لگے ہیں، ویک لگنے لگے ہیں اور سال تو جیسے یوں جا رہا ہے اور یوں آ رہا ہے۔ تو رمضان بھی دیکھتے-دیکھتے گزر جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اتنا پالش کر لیں کہ ہم بہترین طریقے سے اس میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹ جو کہ اس کی فضیلت کے لحاظ سے تھے، 11 پوائنٹ الحمدللہ تھے۔ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کبھی بھی آپ درس میں جائیں تو اپنے آپ کو پین اور اس چیز کے ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے اور شیطان بہت جلدی ہی ہم سب کو بعد میں جو ہے وہ بلانے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھی درس کبھی بھی اسی طرح کے ہم پوری کوشش کر کے وہ اس کو پوائنٹ ٹائپ بنا لیتے ہیں۔ آپ ڈاٹس ڈال کے اپنے پاس کچھ پوری ڈیٹیل نہ لکھیں، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے، کسی اور کو بتانا ہے، تو یہ بہترین ایک آپ کے پاس ایک فلو چارٹ ٹائپ ریڈی ہو جاتا ہے کہ بس آپ اس پہ نظر ڈالیں۔ آپ کو حدیثیں نمبر کے ساتھ ہی وہ اگر نہیں بھی اتنا بتانا ہے تو آپ کم سے کم یہ فضیلتیں اسی لیے ہم حدیثوں کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ آپ کو پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے بتا رہی تھی اور یہ بات کس نے کہی تھی اور یہ تو بالکل ایسا ہے ویسا، کلیئر حدیثیں اور صحیح حدیثیں اور نمبر کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ
तौफीक दे के हम इसको अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तौफीक मिले। तो ये सारी थी हमारी इस महीने की फ़ज़ीलतें। अल्लाह तौफीक दे, हर फ़ज़ीलत को पाने वाला बनाए, आमीन या रब। फिर अ, इस महीने की हमें तैयारियाँ क्यों करना है? क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं करें, बगैर तैयारी करे और बैठे रहें तो हमको वो वाला जो है वो कुरान की आयत में जिस तरह से बयान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि वो लोग जो नहीं निकले थे जंग के लिए और उन्होंने कोई सफ़र की तैयारी नहीं की थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका नाम उन इस चीज़ को नापसंद फरमाया कि उन्होंने कोई तैयारियाँ नहीं करके रखी थी और फिर क्या हो गया? अ फसब्बतहुम वक़ील इक़उदू मअल क़ाइदीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया? वक़ील वक़ील इक़उदू मअल क़ाइदीन, यानी कि बैठने वालों के साथ बैठे ही रहो फिर। उनको तौफ़ीक नहीं मिली कि वो जंग में निकलते। तो तैयारियाँ नहीं करना, भई जब रमज़ान आएगा तब देखेंगे, अभी काहे को अपना सुकून ख़राब कर लेना, अभी से क्या करना है? रमज़ान की तैयारियों में हमें अम, बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं कि राशन है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, रमज़ान के फ़ौरन ही बाद ईद आ जाती है, उसमें हमें किसी को क क्या देना है। ये बर्थडे और इन सब के गिफ्ट ना दे कर के हमें अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसमें तोहफ़े, इसमें ईदी, ये सारी चीज़ें जो देनी होती हैं, तो फिर आखिरी अशरे में बंदा भाग रहा होता है कि भई इधर देखिए, उधर देखिए, क्या करना है, कोई तैयारी नहीं। ये सारी क्योंकि हमें मालूम ईद तो आनी है, आपको अभी से मालूम है किसको आपको क्या देना है। तो अल्लाह तौफ़ीक दे कि राशन से लेके हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं कि किसको क्या देना है, बच्चों के क्या कपड़े होने हैं, ये क्या होना है और सब तैयारियाँ पहले से करी हुई हों। तो ये है पहले से तैयारी क्योंकि अभी जो हम लोगों ने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तैयारियाँ ना करने वालों को फिर किसमें कर दिया कि उनको फिर बैठने वालों में ही अल्लाह ने कहा कि ये बैठने ही वालों में रहेंगे, ये आने वालों में से नहीं। फिर क्यों हमें तैयारियाँ करनी है, क्यों प्लानिंग्स करनी है? क्योंकि वो वाली हदीस भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हम सभी को रमज़ान से रिलेटेड मालूम है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आमीन, आमीन, आमीन कहा। वो अपने मिंबर पर चढ़ते जा रहे थे और थोड़ा चढ़े फिर उन्होंने कहा आमीन, फिर चढ़े फिर कहा आमीन, फिर चढ़े फिर कहा उन्होंने आमीन, 3 बार आमीन कहा। सही? सब सुनी हुई है ना हम सभी की ये हदीस? तो पूछा साहबा ने कि ये क्या कहा आपने, किस बात पर आमीन कहा? तो उन्होंने बताया मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स ज़लील और ख़्वार हो उम, और उसके लिए दूरी हो, यानी कि अल्लाह की रहमत की दूरी हो, उसको मरदूद भी कहा जा सकता है या लानत भी कहा जा सकता है, उसके ऊपर लानत हो। जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाए, तो मैंने उसके ऊपर कह दिया आमीन। गौरतलब बात है, बात कौन कह रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। आमीन कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आम लोगों की आमीन नहीं है और आम लोगों की बात नहीं है। तो कितना ज़्यादा हमें डरने की बात है कि लानती लोगों में शामिल हो जाना, ज़लील लोगों में शामिल हो जाना, इस बात पर कि रमज़ान मुबारक उसके ऊपर से गुज़रा और वो रोज़े अपने आप को माफ़ ना करवा सका। हमारे पास तो कई जानने वालों लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं। अल्लाह ताला सभी को हम कहने के साथ-साथ हमें सुनने वालों सभी को तौफ़ीक अता करे। कोई ये अपने में बड़ाई की बात नहीं है कि मैं तो रोज़ा रखती हूँ और वो रोज़ा नहीं रखते। ये अफ़सोस की बात है कि इतनी मुबारक चीज़ें होने के बावजूद कई इंसान जो है वो रोज़ाख़ोर किसे कहा जाता है? जो नहीं रोज़ा रख रहे होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे आप देखिए कैसे तड़प-तड़प के आ रहे होते हैं। आप मना भी कर रहे होते हैं, बेटा आप पे फ़र्ज़ नहीं है, आपको स्कूल जाना है, आप नहीं रखें, नहीं, नहीं मम्मा मुझे रखना है, आप उनको सहरी में ना उठाएँ तो वो नाराज़ होते हैं कि मैंने बोला था मुझे रोज़ा रखना है, आपने क्यों नहीं उठाया वग़ैरह। उनकी मोहब्बतें देखें कि क्या ये अल्लाह की तरफ से डाली हुई चीज़ नहीं है? इंसान इसे ख़राब करता है, इंसान इसे बिगाड़ता है। तो अ, हमें भी इसको लेकर चलना चाहिए कि अ अ, पूरी हिम्मत के साथ तैयारियाँ करना चाहिए और अम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में जो तीसरी आमीन थी दूसरी वो भी बहुत वालिदैन पाए, बूढ़े वालिदैन पाए अपनी ज़िंदगी में और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत में दाखिल ना करवाए। तो उसके ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर उसी तरह से एक बहुत छोटी बात आती है कि वो भी ज़लील और ख़्वार हो, लानत हो उसके ऊपर कि जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उनके ऊपर दुरूद ना पढ़े। मजलिस में बैठे हैं, बार-बार बार ही नाम आ रहा है और आपको
एक दफा भी कह लेना एनफ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार नाम सुने तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना छोटा सा ये दुरूद है, अगर आप पूरा दुरूद नहीं भी पढ़ रही हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम के साथ ही लगा होता है ना, तो ये दुरूद सलाम ही है, तो वो भी कह सकते हैं हम। तो अल्लाह तौफीक दे कि जो हमारी इस हदीस से रिलेटेड था कि हमें क्यों तैयारियां करनी है। अगर हम पहले से तैयारियां नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कहीं लानती लोगों में शामिल हो जाए कि भाई चलो कोई कहे कि भाई ऑफर्स नहीं चाहिए मुझे, वो फजीलतें जो बयान की है मैं ओके ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑफर लगे हुए थे, इतनी कोई फजीलत ना भी मिली तो क्या मुसीबत है। मुसीबत देखें तैयारियां ना की तो ये मुसीबत है कि जलील ख्वार, लानती, अल्लाह की रहमत से दूर और मरदूद, इन सभी में शामिल हो जाने वाला। सुनन तिरमिजी की हदीस है 3545, ये जो भी बयान हुई। फिर इसी तरह क्यों क्यों तैयारी करना है, जिसमें से हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जब जब भी घर में कोई अहम मेहमान आए, कोई अहम वक्त आए, किसी अपने अजीज बच्चे की शादी है या कोई हमारा अजीज ऐसी खाला फूफी हैं जो आने वाली हैं, कहीं दूर से आने वाली हैं, आपको मालूम है कि बेहतरीन बेहतरीन तोहफे लेके आती हैं, ये है वो है, तो हम उस खाला फूफी उनके भी आने पर कुछ तो एहतमाम करते ही हैं, क्योंकि हमें उनकी अहमियत होती है। क्यों हम शादी के लिए इतना भाग दौड़ करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है मेरे बच्चे की शादी है, उसकी हमारे दिल में अहमियत होती है कि भाई कोई कमी ना रह जाए, इस तरह से खुशियाँ मनाएँगे, ये करेंगे। तो हम एहतमाम क्या उसी दिन खड़े होते हैं, आज शादी है, आज करना है, आज हमारी फूफी आ रही है, आज हमारी बहन आ रही है, आज करना है। हम पहले से कुछ तैयारियाँ करके रखते हैं ना, तो रमज़ान की क्यों नहीं करते? क्या ये इस बात की कमी नहीं है कि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं? इसकी वैल्यू है, इस वजह से हम इसको पहले से, अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, चलें जिनकी तैयारियाँ नहीं हुई, अभी भी गनीमत है, भाग जाएँ, मार्केट अभी भी भरी होती है, सुभान अल्लाह। आखिर में तो ऐसी भरी होती है कि जैसे कि अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये दुरूस और ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अब जो है वो आसान हो गई है उनके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तैयारियाँ हम लोग करके रखते हैं। तो अल्लाह तौफ़ीक दे। और भी हमें इसका तमाम तैयारियाँ क्यों करके रखनी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। हमें नहीं मालूम कि कितने रोज़े मिलने वाले हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या इस भी रमज़ान में हमको दाखिल होने का वक़्त मिलेगा या हम अल्लाह के पास लौट जाएँगे। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछले साल आपको मालूम होगा कि हम लोगों के साथ थे, ये थी, वो थी, हमारे ये थे, वो थे, लेकिन आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं। वो उनका आखिरी रमज़ान था। क्या उनको मालूम था कि वो उनका आखिरी रमज़ान है? क्या उनको पता था कि वो इस तरह से वो जब उम, ईज़ी जा रहे हैं कि चलो बस इतनी ही कर पा रहे हैं, इतना ही करेंगे और फिर अ, उसको ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आराम से निकाल रहे होते हैं। तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि जैसे कि हमें नहीं मालूम कि हमारा ये आखिरी रमज़ान हो। फिर ये एक अक्लमंद होने की भी इंसान की अक्लमंदी की निशानी है कि जब वो किसी नए शहर में जाता है या उसके घर में कोई शादी हो या उसके घर में कोई मेहमान आ रहा हो, तो वो उसकी प्लानिंग पहले से करता है। तो उसकी उसको कहते हैं जब पहले से मालूम भई एग्ज़ाम आने वाले थे, आपने कोई तैयारी नहीं की, तो उसको बेवकूफ़ कहा जा रहा था। तो ये अक्लमंदी की निशानी है कि हम इतने मुबारक महीने में दाखिल हो रहे हैं और उसकी कोई तैयारी ना करके रखी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि बताया कि ये पूरे साल की प्लानिंग होती है और पूरे साल की ट्रेनिंग होती है कि अचानक से हम इतने ज़्यादा इबादत करने वाले नहीं बन पाते। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि उम, रमज़ान में पहले से ही इसकी तैयारी करनी होती है। तो वक़्त की, जगह की, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सभी का ख़्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी इनसे पूछा गया कि आप लोग रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने दिलों को साफ़ कर देते हैं, सुभान अल्लाह। यानी कि दिलों में बुग़्ज़, कीना, एक-दूसरे के लिए नफ़रत, उन्हीं ने मेरे साथ किया था, मैं भी करूँगी। और ये चीज़ें रख कर के रमज़ान में दाख़िल होना, ये बहुत बहुत ही एक कमी की बात है। तो इब्न क़य्यिम फ़रमाते हैं कि अपने मकसद तक पहुँचने के लिए रास्ते से रुकावटें दूर करना ज़रूरी है। तो हमें देखना चाहिए कि दिल की सफाई में ये चीज़ें आएँगी।
कि हम किसी से तो नफ़रतें रख रहे हों और रमज़ान में अल्लाह के आगे खूब झुक रहे हों और किसी से बदला लेने का रखते हों और रमज़ान में इबादतें कर रहे हों। तो दिल का साफ़ होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे हम सभी को। आमीन या रब। चलें, फिर इसी तरह सच्ची और ख़ालिस तौबा की ज़रूरत है। तौबा करके इंशाअल्लाह हम लोग इसमें रमज़ान में दाख़िल हों। अ, आम तौर पर लोगों से जो हमारे सारे दिनों के ताल्लुकात होते हैं कि भई आए दिन किसी के घर जा रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई बुला रहा है, किसी के फालतू में उनके घर पर बैठे हुए हैं या उनको वो भी आए जा रहे हैं, बस क्या फ़ारिग हो गए थे तो आ गए। ये वाले ताल्लुकात भी जो हैं वो हमें कम कर देने हैं, ये भी रमज़ान की तैयारी के अंदर आता है। फिर इसी तरह हमारा एक अच्छा वक़्त गुज़रता है मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर भी फिर हमें ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि सोशल मीडिया चलिए किसी को बहुत ज़रूरी है कि वो किसी से टच में रहता हो तो एक वक़्त बना ले कि बस मुझे इतना सा देखना है, वो भी बहुत ज़रूरी काम हो तो। वरना बिल्कुल इन चीज़ों को छोड़ दें, दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़े दिन इसको छोड़ दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ़ ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह वाले फिर होकर रह जाते हैं। दोस्तों से, इन सारी चीज़ों से रोज़ की रोज़ जो मुलाकातें होती हैं, इनको भी कम कर देना हमारे अ, अमल के अंदर फ़ायदा देता है। चलें अभी जैसा कि हम लोगों ने कहा था और इंडिया पाकिस्तान की तरफ नमाज़ का भी वक़्त हुआ होता है मग़रिब का कि थोड़ी देर बस 1 घंटा ही दरस चलेगा। ऐसा अंदाज़ा था कि हम लोग एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकेंगे। अभी रोज़े के मकरूहात, रोज़े में कुफ़ारा, कौन रोज़ा छोड़ सकता है, क्या चीज़ें रोज़े को इफ़ेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी बाकी रहती हैं, जिसको हम लोग कल के सेम इसी टाइम पर 2 दिन का दरस ही है, तो इंशाअल्लाह कल के टाइम पर रखेंगे और कुछ बातें और लेकर इंशाअल्लाह फिर बंद करेंगे कि रमज़ान में हमें दाखिल होने से और कुरान की तिलावतें अटक-अटक की होती हैं और फिर हम चाहेंगे कि रमज़ान में बस हम बहुत ये हो जाएँगे फ़ास्ट हो जाएँगे और एक-एक कुरान ख़त्म कर लेंगे और उनसे एक पूरा कुरान भी ख़त्म होने जैसा नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। तो रमज़ान में दाखिल होने से पहले इबादतों की आदत डाल लेनी है। तो ये पॉइंट भी आता है रमज़ान की तैयारी के अंदर। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अल्लाह के रसूल शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो ये रोज़े उनकी प्रैक्टिस होती थी कि आखिर के दिनों में अगर किसी को ऐसा महसूस होने लगे शाबान में कि वो कमज़ोरी महसूस करेगा और फिर उसके मेन रोज़े रमज़ान के ही छूटने वाले होंगे तो फिर कम कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिर में छोड़ देते थे शाबान में लेकिन शुरू के ऐसे रोज़े रखते थे सुभान अल्लाह कि जैसे कि वो पूरा महीना छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये प्रैक्टिस थी, ये रमज़ान में दाखिल होने से पहले ये प्रैक्टिस थी। तो अल्लाह तौफ़ीक़ दे, अब तो हम लोग काफ़ी कम करीब आ गए हैं। इस चीज़ को याद रखने की कि हमें आगे इस तरह से करना है। फिर जो हमारे सलफ़ थे, सलफ़ कौन होते हैं? जो पिछले नेक लोग जो गुज़र चुके हैं, उनमें से वो क्या करते थे, शाबान के महीने को शहरुल कुर्रा कहते थे। शहरुल कुर्रा यानी क़िराअत करने वाले जो क़ारी थे, वो खूब-खूब अपनी क़िराअत बढ़ा लेते थे इसी महीने में। हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा अभी तो थोड़े दिन और पड़े बचे हैं, थोड़ा और लेट लेते हैं, अभी और सो लेते हैं, अभी और ये कर लेते हैं, अभी तो रमज़ान का महीना आ ही रहा है, उसी में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पढ़ना है, तो अभी रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी रेस्ट करने वालों को बाद में अचानक से तिलावतें नसीब हो जाएँगी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके 2 पॉइंट और हैं, उसको सुन कर के फिर इंशाअल्लाह बंद करेंगे। अ, हमारा हाल कुरान के साथ किस तरह का, इसको हम चेक करें कि तजवीद के साथ, तरतील के साथ, तरतील क्या है? बेहतरीन तजवीद के साथ पढ़ना आना चाहिए। कुरान को समझ कर पढ़ना आना चाहिए। बेहतरीन तिलावतों के ऊपर तो लोग क्योंकि तजवीद का कोर्स काफ़ी शॉर्ट होता है, लोग उसको करने में शौक भी दिखाते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि एक हुर्फ इधर से उधर हो जाना मायनों को बदल रहा होता है, जो कि
कुरान के मायने बदलना हराम, वर्ड बदलना हराम काम है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये असल नहीं है, असल क्या है कि ये तो हिदायत के लिए आया था। तो इंशाअल्लाह हम लोग इसके ऊपर कुरान के ऊपर, क्योंकि कुरान का महीना है, कुरान के ऊपर और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, अगले दरस में इंशाअल्लाह। और रमज़ान की तैयारियों में से हमें अपने तहज्जुद का भी हाल देख लेना है कि कितना हम रातों में हमारे पास जागने की इस्तिताअत है, कितनी हम नमाज़ें पढ़ते हैं वग़ैरह। तो ये सारी ट्रेनिंग होती थी कि 6 महीना पहले से सर जो है वो दुआएँ माँगना शुरू कर देते थे। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, कि या रब हम सबको रमज़ान में दाखिल फ़रमाना। और अ, बाकी अ, बाद में ये भी दुआएँ करते थे 6 महीना कि या रब जो इबादतें की हैं उसको कबूल फ़रमा लेना। ओके, चलें। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोज़े इफ्तार की दुआ और किसी के घर पे अगर आप कोई और आपको इफ्तार करा रहा हो उसकी दुआ, और फिर इसकी दुआ की दुआएँ माँगने का, और लैलतुल क़द्र की दुआ, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे साथ-साथ। और रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ें, रोज़ा को मकरूह कर देने वाली चीज़ें, या अपने मसाइल होते हैं अपने कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, और इन चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, आप सभी का वक़्त, कीमती वक़्त देने के लिए। चलें, कल मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।